Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the fourth part of chapter number 3, valuation of goodwill. In first part we have seen the theoretical aspect of this particular chapter. In part number 2 we have discussed the first method for the calculation of goodwill, that is average profit method. In the third part we have seen the weighted average profit method, and now we are starting with the super profit method. Okay, so let's begin our session. So for the calculation of super profit method, what we need to do, let me give the title super profit method. So for the calculation of super profit method, you have to follow following steps. Step number 1. What is our first step? Our first step, that is to find out the capital employed. Capital employed. Okay, now what is capital employed? Capital employed, that means total assets minus total external liabilities. Clear? Total assets minus total external liabilities. Now whatever answer you are going to get from this, you will write down it in a outer column. Clear? पहले स्टेप में आपको क्या करना है? You have to find out capital employed. How you are going to find that? Total assets minus total external liabilities. जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे रख दोगे? बाहर रख दोगे. Second step, step number 2. Now what is our second step? We have to find out expected rate of return. Expected rate of return. Sorry. Expected rate of return. You can also write down ROR for this one. This will be given in the example. ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा, वो परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. थर्ड स्टेप, व्हाट इज आवर थर्ड स्टेप? वी हैव टू फाइंड आउट आवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. Now what is the formula for expected profit? Whatever the answer you are getting in step number 1, you will multiply step number 2 with it. Clear? तो अगर यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज आंसर मिला और 10% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 लाख इंटू 10%, दैट मीन्स वॉट एवर अमाउंट, दैट इज 10,000 यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. क्लियर? तो ये आपको लाइन में याद रह जाएगा. पहला कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, सेकंड क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और थर्ड आपका क्या आएगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. दैट इज योर स्टेप नंबर 3. उसका जो आंसर आया उसे आउटर कॉलम में लिख दो. दैट इज योर थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4. यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. ओके. Now what is the formula for average profit? Just simple, whatever we have done in first type of sum, that same we are going to apply over here. We are going to find out the average profit on the basis of years given. Clear? तो ये तो आपको जो पहले आपने सम किए उसमें से ही करना है, तो ये तो आपको आ जाएगा. नंबर 5, what is our fifth step? We have to find out super profit. Now what is the formula for super profit? Formula is average profit minus expected profit. अब देखो तो अगर आपको स्टेप ने लेना हो तो स्टेप
5 माइनस स्टेप 4, मतलब ये दोनों है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका नंबर 5 का आंसर आ जाएगा. क्लियर? एंड द लास्ट स्टेप दैट इज योर गुडविल. Okay, how we are going to find out the goodwill? For goodwill, we will apply the same formula. इसमें सिर्फ मेथड का चेंज आ जाएगा. क्या, कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? तो सुपर प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ये आपको सम में दिया होगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो फाइनली यू विल गेट दिस आंसर. दिस इज योर गुडविल ऑफ द फर्म. क्लियर? तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ये स्टेप्स याद कर लोगे, 4 मार्क्स इजीली कवर कर पाओगे. ओके, सो अगेन दीज एग्जाम्पल्स आर फॉर 4 मार्क्स. तो इसको जितना अटेंटिवली आप कर सको तो आपको ये नेक्स्ट मेथड में भी काम लग जाएगा. सो लेट्स सी द इलास्ट्रेशन. Illustration number 5. Let me use another pen. Illustration number 5. Pratibha and Pushpa are the partners of a firm. They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. मतलब ये दो पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, ऐसा बोला है. दे डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. आपको अगर रीज़न पता होगा तो गुडविल क्यों करते हैं फाइंड आउट. या तो अगर कोई पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करना होता है, देन ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज. मतलब ये स्टेप देखो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इसके अंदर आपको कितना मिल गया? 3 years मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा. क्लियर? नाउ व्हाट स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो. अब आगे देखो सम में क्या दिया है. असेट्स 12 लाख, लायबिलिटीज 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड एक्चुअल प्रॉफिट इट इज गिवन. 3 years आर देयर. तो चलो स्टेप नंबर 1 लिखते हैं. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम पहले वो टेबल क्रिएट कर देते हैं. स्टेटमेंट showing computation of goodwill. Okay, now first step, that is your serial number or step number. Second is particulars, and third and the most important, that is amount. अमाउंट तो आएगी ना, अमाउंट पे तो कैलकुलेशन है पूरा. स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1. ओके, इन स्टेप नंबर 1 व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड. अब देखो सम में देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करना है? Assets and liabilities are given. So what is the total of assets? Total assets, that is rupees 12 lakh, and total liabilities, that is rupees 4 lakh. Clear? आंसर निकालो तो कितना आंसर आ गया? 8 लाख रुपीज आंसर आ गया. 12 lakh minus 4 lakh, you will get the answer 8 lakh rupees. स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. अब सम में देखो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा एज इट इज गिवन 10%, तो हम क्या लिख देंगे? 10%. स्टेप नंबर 3. व्हाट इज अवर स्टेप 3? इट इज टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. लिख देते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ये स्टेप्स बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे. अगर याद नहीं होंगे तो क्लियर नहीं कर पाओगे ये एग्जाम्पल्स. मतलब स्टेप अच्छे से याद कर लो, इजीली स्कोर कर लोगे 4 मार्क्स. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मतलब फाइनल अकाउंट का सम है तो हमसे नहीं होगा, या तो फिर ऐसा. बहुत सिंपल सम है,
आराम से पूरे स्कोर कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन इट. ओके, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो हमने क्या स्टेप 3 में याद रखा था, स्टेप 1 और स्टेप 2 का मल्टीप्लीकेशन. सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख रुपीज, सो 8 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%. तो क्लियरली यहाँ पे कर देंगे. चलो सम में सॉल्व करते हैं. 8 लाख इंटू 10 और फिर क्या दबाओगे परसेंटेज. कितना आंसर मिला 80,000. दैट इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3. नाउ नेक्स्ट इज आवर स्टेप नंबर 4 इज टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें देखो सम में 3 साल दिए हैं 2014, 15, 15, 16, 15, 16 एंड 16, 17. तो वो हम यहां पे लिख देंगे 2014, 15, 2015, 16 एंड 2016 एंड 17. यहां पे उसकी प्रॉफिट लिख दो. प्रॉफिट है कितना 1,30,000, सेकेंड 1,10,000 एंड थर्ड दैट इज 1,20,000. क्लियर. इसका टोटल कितना आएगा आपका 3,60,000. टोटल करके देखो 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000. 3,60,000 आ गया. 3,60,000 हमने कहाँ पे लिख दिया इनर कॉलम में लिख दिया. अब देखो इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. अभी तो हमको ये क्या मिला है टोटल मिला है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो अब सीधा कर लो यहां पे 3,60,000 डिवाइड बाय 3 नंबर्स ऑफ ईयर्स आर देयर 1, 2 एंड 3. आंसर क्या आ गया. आंसर हम फिर ब्लू पेन से लिखते हैं 3,60,000 डिवाइड बाय 3. यू विल गेट द आंसर 1,20,000. क्लियर. नाउ स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 इज टू फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट. ओके, अब देखो सम में सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सम में हमने जो ढूंढा अभी ये रहा यहाँ पे 1,20,000. 1,20,000 माइनस व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ये देखो स्टेप नंबर 3 80,000. तो इतने 80,000 माइनस कर देंगे. 1,20,000 माइनस 80 दैट मीन्स 40,000. सो 40,000 रुपीज इज योर सुपर प्रॉफिट. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड आउट द गुडविल. गुडविल की फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000 जो हमें अभी ढूंढा. एंड एज इट इज रिटर्न इन द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या लिखा है on the basis of firm's profit and other information determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years of purchase. So multiply by 3. What answer you will get 1,20,000. 40,000 into 3 1,20,000. So this is the goodwill of the firm. Clear. पता चला ये सम. इस टाइप के सम देखो मैंने इसमें क्या किया आपको एक मेथड समझा दी पूरी और एक इलास्ट्रेशन भी सॉल्व कर दिया. क्लियर है. चलो अब नेक्स्ट जाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन. इलास्ट्रेशन नंबर 6. नाउ पूजा एंड प्रार्थना's firm capital is 8 lakh rupees. Expected rate of return is 12%. Last year's profit are 1 lakh, 1,40,000 and 19,000 respectively. Determine the goodwill of the firm on the basis of 2 years of purchase for the last 3 years of average profit. सब में क्लियरली दे दिया है 2 years of purchase पे ही काउंट करना है.
सो फर्स्ट हम क्या कर देंगे, वी विल प्रिपेयर दी स्टेटमेंट, बना देंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. Okay, now here we will write down the numbers, particulars and amount. अब सब में आप लाइंस ड्रॉ कर देना. लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं अपना टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, ठीक है. नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. चलो, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो देखो सब में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है. फर्स्ट लाइन देखो, पूजा एंड प्रार्थना फर्म कैपिटल इज ₹8 लाख. अब इसमें आपको करना क्या था, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी करना था. पर इसमें तो डायरेक्टली दे दिया है कि इतनी कैपिटल है, तो हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधी कैपिटल लिख देंगे ₹8 लाख. दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ये सब में दिया ही होगा कंफर्म. तो देखो कितना दिया है, 12%. 12% यहाँ पे लिख दिया. स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ओके. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न. सो 8 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12%, 96,000 होगा शायद. Yes, 96,000. So that is the answer for step number 3. Step number 4 is to find out the average profit. अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, ईयर्स पहले तो, एंड सेकेंड इज प्रॉफिट. ईयर कितने हैं, 3 साल है. ईयर्स के नंबर नहीं दिए तो 1 2 3 लिख देंगे सीधा. चलो, प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट ईयर इट इज 1 लाख रुपीज, second year it is 1,40,000 rupees, and third year it is 90,000 rupees. इसका टोटल करते हैं, 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 90,000, क्या आया 330. ये आपको क्या मिला, टोटल मिला 3,30,000. चलो, अब एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला. What is the formula for average profit? Average profit is equal to total profit divide by number of years. चलो, टोटल प्रॉफिट कितना है अपना 3,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 3. आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 1,10,000. 1,10,000. So we got the answer step number 4. Next step, step number 5. अब फिफ्थ स्टेज में आपको क्या करना है, you have to find out super profit. जो हमारी मेथड है वही करेंगे, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितनी दी है सब में, हमने ढूंढी वो, ये रहा 1,10,000. 1,10,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये था, हमें एक्सपेक्टेड इतना था 96,000, माइनस 96,000 कर दो, 14,000 आ गया. सो आवर सुपर प्रॉफिट इज ₹14,000. स्टेप नंबर 6 एंड द लास्ट स्टेप, दैट इज योर गुडविल. गुडविल की फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अब सब में आपको क्लियरली मैंने पहले ही बोला था, लिखा था कि आपको 2 ईयर्स के बेसिस पे लेना है. सो 14,000 इंटू 2, आंसर इज 28,000. दिस इज योर गुडविल फॉर द फर्म. क्लियर? So we have covered both the illustration. Now we are starting with the example of the textbook. Okay, exercise. So from the exercise,
Jump on the question number 8. Question number 8. Okay. So, Pushpa, Pratibha and Bhavna are partners of a partnership firm. They decided to change the profit sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. On the basis of partnership firm's profit and other information, determine the value on the basis of 3 years of purchase of super profit. तो सुपर प्रॉफिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज, मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 3 आ जाएगा गुडविल में. लास्ट स्टेप. ओके, चलो. असेट दी है 6 लाख रुपीज, लायबिलिटीज 2,50,000 एंड नेक्स्ट वन दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%. सिंपल हो गया सम. जैसा हमने फर्स्ट इलास्ट्रेशन इस यूनिट का किया था, मतलब यहाँ पे अभी इस वीडियो में ही, वैसा सेम टू सेम यहाँ पे आ गया. इलास्ट्रेशन 5 के जैसा ही है. ज़रूरत नहीं है करवाने की, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, देख लो. फर्स्ट वन, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. ओके, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. चलो, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1. पहले स्टेप में हम क्या करते थे, वी आर फाइंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के कौन सी फॉर्मूला, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. अब आप देखो टोटल असेट्स आपकी कितनी दी है सम में, असेट्स ₹6 लाख, 6 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज कितनी दी है, 2,50,000. What is the difference? 350. 3 lakh minus 250. Okay, it is 3,50,000. You will get the answer for step number 1. Now step number 2. Step number में expected rate of return. सब में देखो expected rate of return कितना दिया है, 10%. थर्ड, expected profit. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड ROR, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 35,000 आ गया. दैट इज योर आंसर फॉर स्टेप नंबर 3. अब देखो, आप देखो ना तो 5 मिनट के अंदर ये सम इजीली क्लियर हो सकता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. We are going to find out average profit. So average profit के लिए first क्या चाहिए, year and second is profit. year देखो कौन से दिए हैं, 2014-15, 2015-16 and 2016 and 17, ये years दिए हैं. profit देखो सम में कितना दिया है, 80,000, next is 70,000, थर्ड वन दैट इज 90,000. चलो इसका टोटल करते हैं, 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000, टोटल कितना आया, 2,40,000. ओके, ये तो आपको क्या मिला, टोटल प्रॉफिट. आपको ढूंढना क्या है, एवरेज प्रॉफिट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स इज, यू विल गेट द आंसर 80,000. सो दिस इज द आंसर फॉर स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट. जो हमारा टाइटल है वही सुपर प्रॉफिट. सो व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड. सो एवरेज प्रॉफिट minus expected profit. What is average profit? Average profit is ₹80,000 minus, ये हमने लिया 80 minus 35. So
80,000 minus 35,000. Answer is 45,000. So your super profit is rupees 45,000. Next, step number 6 and the last one, that is to find out goodwill. चलो गुडविल की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा 45,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अब एग्जांपल में देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज. मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 करो, 1,35,000. सो दिस इज योर आंसर 1,35,000. दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म. क्लियर? यहाँ पे आप लिख भी सकते हो गुडविल ऑफ द फर्म पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना will be 1,35,000. Clear?